Class 12th, subject biology, content, molecular basis of inheritance. In this content, we are going to study transcription, translation, DNA fingerprinting, and how to detect the select and detect the evidence which are related to different controversies of convenient and inconvenient cases. So, dear student, we are going to study the transcriptions. Transcriptions, the gene informations coded in DNA transferred to RNA. In this process, messenger RNA synthesized on the DNA template in such a way that messenger RNA shows a resemblance with one of the strand of DNA. This one of the resemblance is known as the complementary characteristic of DNA. It shows the semi-conservation mode of replication and transcription. The strand of DNA which synthesizes messenger RNA on the basis of complementary base pairing is called template strand or sense strand. Another strand of DNA is called antisense strand. The messenger RNA which is synthesized on template strand is similar to coding or sense strand except the presence of uracil in place of thymine of DNA. Transcription takes place in the presence of an enzyme known as RNA polymerase in prokaryotes. After that, in prokaryotes have only one type of messenger RNA polymerase, but in the cells of eukaryotes organisms, three different type of RNA polymerase are present at the site of transcription. Dear student, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है आरएनए के फॉर्म में मीन्स डीएनए से टेम्पलेट के फॉर्म में सिंगल स्टैंड आरएनए या मैसेंजर आरएनए जो रिलीज होता है यह प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शंस कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शंस की यदि प्रोसेस को प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में ऑब्जर्व किया जाए तो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में सिंगल टाइप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि परफॉर्म करता है ट्रांसक्रिप्शंस बट इन द यूकैरियोटिक सेल थ्री टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट एट द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस। डियर स्टूडेंट, we are going to study the transcription in the prokaryotic animals or prokaryotic cells. In prokaryotics, there are two type of messenger RNA polymerase enzyme. First is core enzyme made up of 2 alpha and 1 beta and 1 beta dash polypeptide chain. Sigma made up of sigma polypeptide chain. Sigma factor identified start signal on DNA molecules and direct RNA polymerase to select initiator site. After the initiation transcription, when the RNA becomes 8 to 9 nucleotide long, sigma factor separate from core enzyme. Core enzyme complete the remaining synthesis of messenger RNA. Transcription unit are found on DNA molecules of RNA synthesis which have a strand site and termination signal. In each transcription unit there is a specific base sequence just before up and after stream down starting which is called promoter site. Promoter site has binding the sigma factor. मीन्स डियर स्टूडेंट, यदि हम ट्रांसक्रिप्शन के स्टडी प्रोकैरियोट्स में करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आरएनए पॉलीमरेज टू पार्ट से मिलकर बना होता है। एक कोर एंजाइम होता है, एक सिग्मा फैक्टर होता है। मीन्स यदि देखा जाए तो इनिटिएटर और टर्मिनेटर दो पॉइंट होते हैं हमारे डीएनए में। ओरिजिन ऑफ ओ आर आई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रमोटर, टर्मिनेटर, इनिटिएटर। इनिटिएटर पर पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। 8 या 9 बेस पेयर्स की कॉपी होने के बाद यह जाकर के सिग्मा फैक्टर से ऐड होता है और पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटेड होता हुआ चला जाता है। लास्ट में इसे रो फैक्टर मिलता है जो कि टर्मिनेटिंग फैक्टर होता है। स्पेशल प्रोटीन या स्पेशल ट्रिपलेट कोडान के की प्रेजेंस में ये परफॉर्म होता है। मीन्स एक्चुअली प्रोकैरियोटिक डीएनए छोटा होता है, इंफॉर्मेशन कम, डाटाबेस मिनिमम और कोड मिनिमम होते हैं, इसलिए ये प्रोसेस सिंपल वे पर परफॉर्म होती है। Yes, site for binding of RNA polymerase in most of the each starting point is made up of purine, which has a 6
base pair in base sequence called P Knobs box. 10 base pair before. There is a one more base sequence no known recognitions regions 36 base pair present on here at the 5 end. Means 5 to 3 end strand of DNA is known as the template means a pharma which provide the pharma to duplicate their copy in distinct region to distinct region. After that, there is unbinding the DNA strand as soon as RNA polymerase hollow enzyme bind with the promoter. Unbinding lead to the initiation of separation of both strand. Now messenger RNA transcription start on the template. How to detect the template strand? That strand unbind 5 to 3 end means arrangement of base pair 5 to 3 end with the phosphate and sugar bond is known as the template. After the formation of 8 and 9 nucleotide long RNA, sigma factor separate from the whole enzyme. सिग्मा फैक्टर अलग होगा और लास्ट में टर्मिनेशंस के लिए रो फैक्टर इससे अटैच होगा. In prokaryote, transcriptions didn't end due to termination signal present in the DNA. Such signal are called terminator. In some of bacteria, terminator take place in the presence of Rho factor. That is why terminator signal may be of two types, affected by Rho factor or unaffected by Rho factor. Dear student, हमने क्या जाना? ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या कोड डीएनए पर स्टोर या सिंथेसिस होते हैं उन स्टोर इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके डबल स्ट्रैंड आरएनए के 5 to 3 एंड की ओर काम करने वाला टेम्पलेट एंड अपनी कॉपी बनाता है एक डिस्टिंक्ट रीजन से तक. इस तरह से एक निश्चित एरिया के डीएनए के बेस पेयर्स की सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में सिंथेसाइज होना या स्क्रिप्ट का तैयार होना ट्रांसक्रिप्शंस कहलाता है. ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होनी होती है वहाँ पर सिग्मा फैक्टर और जहाँ पर टर्मिनेट होनी होती है वहाँ रो फैक्टर प्रेजेंट होता है. आरएनए पॉलीमरेज जाकर सिग्मा फैक्टर को बाइंड करता है, कोएंजाइम एक्टिवेट होता है और इनिशिएट हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस. 8-9 बेस पर जुड़ने के बाद प्रमोटर इस ट्रांसक्रिप्शंस को प्रमोट करता है और जैसे ही रो फैक्टर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए सेगमेंट पर उसे बाइंड करता है, चेन बनना बंद हो जाती है. आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स there are three type of RNA polymerase first, RNA polymerase second, RNA polymerase third in eukaryotic. What is the function of RNAP first, RNAP second and RNAP third? RNAP first means RNA polymerase enzyme first is responsible for the transcription of ribosomal RNA, polymerase second and RNA polymerase third. Synthesis of messenger RNA requires the presence of many promoters. The importance promoter of Tata box, CAAT box, GC box. Means Tata box means 8 base pair sequence होंगे उसमें. T Tata means TATA. TATA means thymine and adenine and thymine base pair situated 20 base pair. CAT means it is the base pair of cytosine, adenine and thymine. GC means guanine and cytosine. Dear student, in the eukaryotes, the size of 3 RNA molecules greatly varies and they may be 500 to 220,000 base pair long. Such RNA are known as heterogeneous nuclear RNA, means hetero means H and means nuclear RR means RNA. For editing of this mRNA, 7-methyl guanosine cap is added on its 5 means guanosine GUA. It is the initiator protein कहाँ बाइंड होती है 5 एंड पर और 5 to 6 मोर टाइम और 8 मोर टाइम 7 मोर टाइम बाइंड होती है. अ टेल इज आल्सो एडेड, तीसरे एंड पर एक टेल ऐड होती है. मीन्स हम ये देखें कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक कैप 5 एंड पर और एक टेल 3 एंड पर होती है. ये केमिकली मॉडिफाइड गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी होता है जिसमें एज अबाउट 200 एडनोसाइक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं. इन यूकैरियोट्स जीन आर नोन एज द स्प्लिट जीन्स. समझिएगा स्प्लिट जीन्स दे आर कोडिंग रीजन having useful information known as exon and non-codon regions have no meaning sequence are known as the intron. Means समझिए यदि हम डीएनए के एक पर्टिकुलर एरिया या पूरे डीएनए की कॉपी बनाते हैं तो हमें दो तरह के एमआरएनए या उनके रेप्लिकॉन या उनकी दो तरह की कॉपी मिलती है.
कुछ कॉपीज इसकी इंट्रॉन और कुछ कॉपी एक्सॉन्स कहलाती हैं। समझिए, जहाँ पर हमारे पास प्रोटीन बनाने वाले कोड या एंटी कोड उपलब्ध होते हैं वो एक्सॉन्स कहलाते हैं, और जो हमारे नॉन कोडिंग एरिया होते हैं जहाँ पर कोई भी सेंस नहीं होता वो इंट्रॉन कहलाते हैं। फिर हम इनकी स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब हम एक्सॉन को कलेक्ट करके एक स्ट्रैंड बनाते हैं और इंट्रॉन को निकाल कर बाहर कर देते हैं। द मैसेंजर RNA is transcribed from such type of genes have sequences of exon and intron both in the all these exon or genes are joined. This is called splicing। होता क्या है कि एक्सॉन और इंट्रॉन की हम क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं, फिर हमारे सेंस कोडॉन या एंटी कोडॉन या प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली इंफॉर्मेशन एक्सॉन्स के फॉर्म में होती है, जबकि इंट्रॉन नॉन सेंस होते हैं। हम स्प्लिसिंग के द्वारा सभी एक्सॉन्स को ऐड करके एक न्यू मैसेंजर आरएनए प्रिपेयर करते हैं। स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल प्रोटीन SNRNP मेंशन करेगा इस प्रोटीन को। अ पेयर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन बाइंड करती है इसके इंट्रॉन के एंड को। RNA एंड सम अदर फैक्टर व्हिच बाइंड टू इंट्रॉन एंड टुगेदर फ्रॉम स्प्लिसियोसोम। स्प्लिसियोसोम यूजेज एनर्जी ऑफ ATP फॉर कटिंग द RNA। मीन्स हमने ये जाना कि a segment of DNA which codes for a polypeptide chain is called cistron। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड है 1 मार्क्स एनुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन which segment of DNA so the complementary, मैं ध्यान दीजिए वर्ड पर, complementary of the DNA segment that is known as the cistron which transcribed and form the script in form of messenger RNA from double strand of DNA that is known as the transcription, and their transcription unit is cistron. The structural genes is a transcription unit may be monocistronic as most of the eukaryote are polycistronic as most of prokaryotes. In eukaryotes, the monocistronic structural genes has non-coding segment called intron and coding segment called exons. Such genes are called split genes. Non-coding intron are non-essential region of gene which are also called junk DNA, spacer DNA during the synthesis of messenger RNA. The intron are also transcribed as a result of which a long strand of messenger RNA is synthesized, which is called heterogeneous hnRNA. Now form this heteronuclear RNA introns are removed by small nuclear ribonucleoprotein SNRP or enzyme which cut intron and link together exon. This process is called the splicing। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। दैट टर्मिनोलॉजी डिटरमाइन और गिव द क्लू, यू राइट द आंसर इन फॉर्म ऑफ ऐसे टाइप। फर्स्ट, व्हाट इज द सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन क्या है? यह ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है। ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट मीन्स अ परफेक्ट मैसेंजर RNA व्हिच आर प्रिपेयर फॉर्म, कहाँ से? फ्रॉम डबल स्ट्रैंड DNA। डबल स्ट्रैंड DNA में कहाँ से? 5 to 3 इंडिक्योर। क्यों? क्योंकि यही एरिया है जो टेम्पलेट कवर करेगा। मीन्स व्हाट इज द सिस्ट्रॉन? इट इज द transcriptional unit prepared from template strand of DNA. Which is the template strand of DNA which begins or unbind from 5 to 3 end? Means head cap is present in 5 end, that is known as the head, and 3 tail is present in the 3 end, that is known as the tail। तो हमने माना कि ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट सिस्ट्रॉन है। फिर हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स वो है जिससे हमें कॉपी बनानी है और मैसेंजर RNA बनना है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। कभी ये मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकती है, जो यूकैरियोटिक होते हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। सिस्ट्रॉन इट इज़ द यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हमने देखा कि जो मोनोसिस्ट्रॉनिक हैं हम लोग, उनमें सेंस और नॉन सेंस कोडॉन दो तरह के की कॉपी बनती है। तो जो सेंस होते हैं वो एक्सॉन है और जिनमें कोई सेंस नहीं होता वो इंट्रॉन है। हम सेलेक्ट करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक्सॉन को ऐड करते हैं, और इस तरह से इंट्रॉन एक्सॉन का ऐड करके एक न्यू कॉपी बनाना ही स्प्लिसिंग ऑफ जीन्स कहलाता है। अब बची बात नॉनसेंस कोडॉन की। ये इंट्रॉन एरिया पे पाए जाते हैं या इंट्रॉन्स ही नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं। ये नॉन इसेंशियल है, कोई ज़रूरत नहीं है जीन्स प्रिपेयर होने में, इसलिए इसको जंक DNA, स्पेसर DNA के नाम पर भी जाना जाता है। जब हम मैसेंजर RNA को सिंथेसिस कर रहे होते हैं तब इंट्रॉन भी ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि बहुत लंबा मैसेंजर RNA सिंथेसाइज होता है, जिसमें 2 तरह का DNA होता है। एक ऐसा जो जेनेटिक कोड रखता है, दूसरा जो नहीं रखता हमारे लिए।
इसलिए हम ऐसे बनने वाले मैसेंजर आरएनए को हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? एचएन आरएनए। अब जो हमारा एचएन मैसेंजर आरएनए बना है उससे हम क्या निकाल के बाहर करते हैं? इंट्रॉन को निकाल कर बाहर करते हैं। और स्मॉल किसकी मदद से बाहर करते हैं? तो स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। स्मॉल न्यूक्लियर मीन्स एसएन, आरएनपीएस मीन्स राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स की मदद से या एंजाइम की मदद से हम इंट्रॉन को लिंक कर देते हैं यहाँ से और निकाल कर बाहर कर देते हैं। एक्सेप्शन भी कुछ, देयर आर रेगुलेटरी आरएनएज आर आल्सो कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। After that transcriptions, student, we are going to study the translation. Another biological process of translation. Dear students, our body control and coordinate with the information of DNA, but DNA is not able to enhance indirectly in form of protein. It control and coordinate all the metabolic activities or genetic activities in our body. Process of synthesis of protein in cytoplasm with help of ribosomes by the coding of the sequence of basis of messenger RNA is known as the translation. आपने एक स्क्रिप्ट रेडी करी ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू जिससे डीएनए से एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में रिलीज हुई। मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियस से रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में आता है, राइबोसोम साइट को बाइंड करता है। उस इंफॉर्मेशन या उस कोडिंग सीक्वेंसेस के अकॉर्ड मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहलाता है। ट्रांसलेशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस विच कंप्लीट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यह स्पेसिफिक प्रोसेस है जो कई स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। 20 naturally occurring amino acid participate in protein synthesis. In this process, desired amino acid are taken to the site of protein synthesis by tRNA. For this, activation of amino acid is a prerequisite. Activation is done by the ATP in presence of specific enzyme that are known as the amino acyl tRNA synthetase. नाम याद रखिएगा। The name is that enzyme which activate the amino acid with help of adenosine triphosphate means ATP is known as the amino acyl tRNA synthetase and result in the formation of amino acyl adenylate। मीन्स इसका ये हुआ कि एज अबाउट लगभग 20 नेचुरली अमाइनो एसिड हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जो कि साइटोप्लाज्म में उपलब्ध होते हैं या सिंथेसाइज किए जाते हैं। वह प्रोसेस जिसमें इन अमाइनो एसिड को उस प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर टीआरएनए की हेल्प से कैरी किया जाता है। उन अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है जो कि पहले से वहाँ पर प्री रिक्वेस्टिक होते हैं। उनको एटीपी की हेल्प से एक्टिवेट करके एक्टिव अमाइनो एसिड में बदला जाता है। कैसे? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द एक्टिव अमाइनो एसाइल अमाइनो एसिड। और एक एंजाइम इसमें हेल्प करता है, वो स्पेसिफिक एंजाइम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। आफ्टर दैट मिस ए मिस अमाइनो एसाइड, A plus ATP means adenosine triphosphate in presence of amino acyl tRNA synthetase enzyme. That amino acid which are dormant in the cytoplasm with added ATP, it form amino acyl AMP means adenolate M या or adenosine monophosphate plus phosphate group are released। अब ये अमाइनो एसिड एक्टिव हो चुका है। सेकंड स्टेप पर हम पहुंच रहे हैं, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड विथ टीआरएनए। अब हम क्या करेंगे? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम अटैच करेगा अमाइनो एसाइल एडिनिलेट को, और इस अमाइनो एसिड को कहाँ पर भेजेगा? उस 5 से 3 एंड पर में टेम्पलेट के तीसरे एंड पर भेजेगा इस टीआरएनए को, और ये प्रोसेस कहलाएगी अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। मीन्स एएएमपी आपने प्रिपेयर किया, इसे आपने
टीआरएनए चार्ज टीआरएनए के साथ रिएक्ट कराया, तब आपको क्या बना मिला, आपको पास ए प्लस टीआरएनए और एएमपी को आपने वहाँ से डिलीट करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को परफॉर्म किया। इससे आपको एक कॉम्प्लेक्स मिला, एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इस एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के रेडी होने के बाद इनिटिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन। अब आप पॉलीपेप्टाइड चैन की शुरुआत करेंगे इन एमाइनो एसिड को एक निश्चित सीक्वेंस में ऐड करके। बिगिनिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। The various components of initiation complex are small subunit of ribosome, activated initiator, tRNA, GTP and proteinaceous initiation factor। अब आफ्टर दैट हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक में प्रोसेस ये कैसी होगी। तो प्रोकैरियोट सेल्स, these initiation factor are known as the IFS factor and the initiation factor are known as the IFS factor। In eukaryotic cell EFS और इसे EIFs इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंड विद द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये फैक्टर जाएंगे और राइबोसोम की स्मॉल यूनिट, 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, सेल राइबोसोम इंटर द साइन डी गैमो सीक्वेंस सिचुएटेड नियर द इनिशिएटर कोडॉन, समझिएगा AUG ऑफ मैसेंजर आरएनए। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, राइबोसोम इंटर करेगा कैप्ड एरिया जो 5 एंड पर सिलेटेड है, स्लोली रीच करेगा AUG कोडॉन बाय लाइनियर स्कैनिंग। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म आएगा ज्वाइनिंग ऑफ किसके ज्वाइनिंग से बनेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक्टिवेटेड फार्मेलिन मेथियोनिन आर मेथियोनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विद स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। एक तरफ आपके पास मेथियोनिन है जो बाइंडिंग का काम करवाएगी, कौन कौन जुड़ा होगा, उस मेथियोनिन प्रोटीन पर एक तरफ जुड़ेगा कौन, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट, और दूसरे तरफ जुड़ेगा चार्ज AA मीन्स एमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA मीन्स AA प्लस tRNA, दैट इज अ चार्ज रेडिकल which are bind to the methionine with the site of ribosome। आफ्टर दैट इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन हमने स्टार्ट कर दिया, मीन्स चार्ज एमाइनो एसाइल tRNA को हमने मेथियोनिन की हेल्प से राइबोसोम की साइड से जोड़ा tRNA की हेल्प से। अभी हम सब लोगों ने tRNA के स्टडी करी थी, उसमें 4 लूप हमें देखने को मिले थे, एंटीकोडॉन लूप, इनिटिएटर लूप, DHA लूप वगैरह। अब हम इलांगेट करेंगे इस चैन को। इन द प्रोसेस amino acids are added one by one to form peptide। This process occur at the rate of 15 amino acid per second in the bacterial cell। अब हम क्या करेंगे, एक बार अमाइनो एसिड एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स जुड़ गया, हम अप्रोप्रिएट इसी मैनर से लगातार अमाइनो एसिड को जोड़ते हुए चले जाएंगे। यदि हम इसके रेट को देखें अमाइनो एसिड के ऐड होने का रेट, तो बैक्टीरिया में हमें 15 लगभग 15 अमाइनो एसिड पर सेकंड में हमें जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, और इस तरह से चैन इलांगेट होती हुई आगे की ओर बढ़ती है। सो 2 अमाइनो एसिड पर सेकंड इन यूकैरियोट्स, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में यह रेट बहुत ही स्लो होता है। वहाँ पर हमने 15 अमाइनो एसिड पर सेकंड ऐड किए, यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड पर सेकंड हम यूकैरियोटिक सेल में ऐड करेंगे। दिस लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज़ बाइंडिंग साइट इन हिज tRNA carrying amino acid। One such type of P or peptidal site and other site is known as the A amino acid sites। अब हम यूकैरियोटिक में पहुँच रहे हैं, वहाँ पर हमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगा राइबोसोम की सब यूनिट पर। उस पर एक साइट होगी P साइट, सेकंड होगी A साइट। One site is known as the P site, which P site is represent to the peptidal site. Another site is known as the A site. A site means it is known as the amino acyl binding site। First, tRNA attaches itself with its anticodon to the codon of messenger RNA present at the P site। Next, tRNA carrying another amino acid having the appropriate anticodon bind at the A site। Now an enzyme peptidal transferase, नाम याद रखिए, mention this name for your annual important questions। peptidal transferase, what is the importance of or function of enzyme peptidal transferase? It's make a peptide bond between carboxylic group means COOH group and the amines group means NH2 group in amino acid with tRNA present at the P site। After that the tRNA attached with a site A site, A means amino acid or amino acyl site
A site. This translocation make a site free another tRNA appropriate anticodon amino acid attached with the 3' मीन्स 3' में कौन अटैच होता है, तो आपने याद करिए, आपने ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन के समय आपने पढ़ा था व्हाट आर द primers. Primers is the small fragment of DNA have least small amount of base nitrogenous base pair in form of nucleotide. They are attached with the template in the direction of 3 to 5 end. That is also applicable in here. Again, peptide bond is formed between second amino acid of peptide present at P site and so on. Amino acid add together and form a long chain that is known as the peptide chain or protein chain. After the elongation, we are going to study the how to terminate this peptide chain, means termination of polypeptide chain. The process of elongation goes on till the complete the translation of messenger RNA. ये प्रोसेस मीन्स जो आपने कोडॉन और एंटी कोडॉन को 5 से 3 इंड की ओर आपने कंप्लीट किया था, आरएनए बिकम फ्री एट न्यू राइबोसोम स्टार्ट एंड सिंथेसिस ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल्स मीन्स व्हेन द कोडॉन ऑफ 5' ऑफ एमआरएनए, जब 5' पर रखे हुए सारे कोडॉन के द्वारा डिकोड करके उनके अनुसार अमाइनो एसिड को ऐड कर दिया जाएगा, तब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से फ्री हो जाएगा. इट लीड टू सिंथेसिस ऑफ मैनी प्रोटीन और दूसरे मॉलिक्यूल्स को रेडी करेगा. मीन्स हमें अब टर्मिनेट करना है पॉलीपेप्टाइड चेन को. Means after the process of elongation, we are going to complete the translation of messenger RNA whenever any termination codon. Learn that codon. याद करिए इन codons को, any one, just like UAA. U means uracil adenine adenine. UAA first, UAA, UAG and UGA. इनका आप sequence नहीं change कर सकते. That are the protocols or the characteristic. What are the terminator codon? UAA, URG, UGA appears on the messenger RNA. और जैसे ये इन तीन में से कोई भी कोडॉन मैसेंजर आरएनए पर अपीयर होगा, उसी समय पर्टिकुलर पेप्टाइड चेन से एमाइनो एसाइलेशन स्टॉप होगा और चेन टर्मिनेट हो जाएगी. मैंने जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस. अब समझते हैं इस प्रोसेस को स्टॉप करने में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन स्टॉप होगा इन कोडॉन के मिलने पर, लेकिन होगा क्या, व्हाट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड फॉर दिस मिस्ट्री. रीजन इज दैट व्हेन एवर रिलीज फैक्टर अटैच विथ अमाइनो एसिड साइट मीन्स आ साइड इन प्रोकैरियोटिक चेन रिलीज tRNA अटैच विथ p साइड. It releases tRNA also p site. Later on ribosome also get separated from messenger RNA molecules and it both subunit also become separated from each other. इस तरह से ये पर्टिकुलर जब वहाँ पर हमने रो और म्यू सिग्मा और रो फैक्टर हमने इनिटिएटर और टर्मिनेटर के फॉर्म में यूज किया था और हमने पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन देखी थी. लेकिन हमारी यूकैरियोटिक सेल स्लो प्रोसेस है, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए पर्टिकुलर स्टेप इसमें परफॉर्म होगी. ह्यूज अमाउंट में एटीपी कंज्यूम होती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन में. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. फर्स्ट we are going to study the human genome project SGP. After that we are going to study we will study the content DNA fingerprinting. First question, why human genome project SGP is known as the worldwide or mega project of the world? In human genome project was the international scientist research project which is the goal of determining the sequence of all of the 3 or 2 billion nucleotide of human genome. Objective of human genome project is that identify the approximately 20,000 genes which are found in human. Second, determine the sequence of 3.2 billion base pair that make up human DNA. Determination of function of all the human genes. Store this information in databases. Improve tool for data analysis. Address the ethical, legal and social ELSI issues that may arise from project.
मीन्स इस बड़े प्रोजेक्ट को, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसे ह्यूग प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? एक्चुअली है क्या कि इसमें हमने ह्यूमन के एज अबाउट 20,000 और 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को मेजर किया है। केवल मेजर भर नहीं किया, उनके हमने फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिकल अल्टरनेटिव और अपीयरेंस भी देखे हैं। मीन्स 1984 में यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जो एज अबाउट 15 ईयर तक, मीन्स लाइक 1990 में कंप्लीट होने पर आया, जो कि आगे जाकर 2002 में कंप्लीट हुआ। यदि हम इसका रफ ड्राफ्ट प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट यूएस गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एज वेल एज न्यूमरस अदर ग्रुप फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड के द्वारा प्रिपेयर हो गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एज अबाउट 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर मीन्स 3.2 बिलियन बेस पेयर को मेजर किया गया, और इसमें एज अबाउट आप समझिएगा 3300 सच बुकेज ऐसे लिखी जाएँ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाली गई, और उसे हर बुक 1000 पेजेस की हो तो शायद इन्फॉर्मेशन कम पड़ जाए। दूसरा, इसमें ह्यूज अमाउंट पे मनी स्पेंड हुई है, वर्ल्ड वाइड में बहुत से देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसे एक ह्यूज प्रोजेक्ट कहा जाता है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव क्या रहे हमारे इससे, ताकि हम सबसे पहले ह्यूमन में पाए जाने वाले एज अबाउट 20,000 जीन्स को मेजर कर सकें। 3.2 बिलियन बेस पेयर हैं, उन सीक्वेंसेस को हम क्या सकें डिटरमाइन कर सकें। डिटरमाइन किए गए बेस पेयर्स के या जीन्स के हम फंक्शन जान सकें, हम इस इंफॉर्मेशन को डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर कर सकें, साथ में हम हमारे बीच इथिकल, लीगल या सोशल, समझिए इथिकल, लीगल या सोशल इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज को हम इनके थ्रू सॉल्व कर सकें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मीन्स एसजीपी का। मेथडोलॉजीज़, हमने कौन सी मेथडोलॉजी यहाँ पर यूज़ करी? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने दो तरह की अप्रोचेस अपनी लगाई। पहला एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस टैग की, और सेकंड सीक्वेंसेस एनोनेशंस की। सो डियर स्टूडेंट, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग, इस तरह की अप्रोच का इन्वॉल्वमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल जीन्स एक्सप्रेस बाय एज आरएनए। हमारा पहला टारगेट था कि हर डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसक्रिप्शंस करके उसका आरएनए फॉर्म किया जाए, और आरएनए के थ्रू उस डीएनए के सारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करके समझा जाए। सेकंड, सीक्वेंसेस एनोनेशंस। This approach involves sequencing the whole set of genome that contain all the codon and non-coding sequences, and also assigning different region in the sequence with function of this. The total DNA from a cell is isolated and converted into random fragment of relative smaller size. Then these fragments are cloned in suitable host using specialized vector. This cloning result into amplification of each fragment of DNA. Subsequently could be sequenced with easy. मीन्स हमने क्या किया यहाँ पर, हमने पर्टिकुलर होल डीएनए को हमने आइसोलेट किया सेल से। आइसोलेट करने के बाद उसके हमने रैंडम फ्रेगमेंट बनाए। हर फ्रेगमेंट की कॉपी मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में हमने प्रिपेयर की। उस आरएनए को टैग किया हमने किसी भी एक वेक्टर के साथ उसे हमने पर्टिकुलर होस्ट में उसे हमने कल्चर किया। कल्चर करने के बाद हमने उसके कैरेक्टर्स या फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसे डाटा के फॉर्म में हमने स्टोर किया। दैट इज़ द मल्टी स्टेप प्रोसेस, मीन्स दैट प्रोसेस बी एक्सप्लेन इन द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम इस बारे में डिटेल में स्टडी आगे आने वाले चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? आते हैं इस पॉइंट पर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप समझिए 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड को हमने मेजर किया। 3.2 बिलियन बेस पेयर हमने मेजर किया या टैग किया हमने। 99.9% न्यूक्लियोटाइड
आइडेंटिफाई कर लिए गए जो वर्ल्ड के किसी भी ह्यूमन में पाए जा सकते हैं। लेस देन 0.1% अवर डीएनए अकाउंट जो चेंज होगा, म्यूटेशन, हेरिडिटी, इनके थ्रू हम उसे फ्यूचर में मेजर करेंगे। आप ये समझिए कि सरप्राइज यह जानकर आप होंगे कि ह्यूमन जीनोम कॉन्सिस्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, हेंस कॉल्ड जंक डीएनए। हमने उन्हें भी मेजर किया जो नॉन सेंस कोडॉन है, जो कभी प्रोटीन कोड नहीं करते, हमने उनको भी टैग किया। एवरेज जीन consist 3000 nucleotide but size are very greatly. Has the largest known human gene consisting of 2.4 million nucleotide code for the protein dystrophin. एक न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न करिएगा। एक प्रोटीन है, नाम है डेस्ट्रोफिन, DYSTROPHIN, डेस्ट्रोफिन। डेस्ट्रोफिन बनाने के लिए आपको 2.4 मिलियन बेस पेयर चाहिए, तब जीन्स क्रिएट होगा, तब ये प्रोटीन बनेगी। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन जीनोम 30,000, 1 lakh previously predicted to exist. Less than 2% of genome coded for protein. Higher 2,968 genes are found in chromosome 1 and lowest 231 genes are found in Y chromosome human genome. This is called single nucleotide polymorphism. एक वर्ड और, सिंगल मार्क क्वेश्चन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs or SNPs. Such of this word will be, or sorry, this process will will explained at the chapter of biotechnology. Application and future of challenges. Information about the human genome and how it is affected by the environment seeks to identify and discover function, means जो करेक्टर अभी हमने डेवलप या मेजर किए हैं आफ्टर 100, 200 और मिलियन ईयर्स आफ्टर, इन्वायरमेंट कौन कौन से अडाप्टेशन प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन या उससे इंटरकनेक्टेड वैरायटीज़ पर, फ्यूचर पर हम उसे मेजर कर सकते हैं ग्रॉस में। दूसरी, हम जीनोमिक मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं, एक नया एम या नया ब्रांड खुलेगा। मीन्स जैसी जीन या हमारी बॉडी जिस तरह की प्रोटीन के थ्रू जिस मेडिसिन को सेटिस्फाई होना चाहती है, वैसे जीनोमिक मेडिसिन हम इसके थ्रू काउंसलिंग करके रेडी कर सकते हैं। Applicants made in connection with Human Genome Project have also used the biological researches to large-scale human in flatworm, fruit flies, mice, and other animals. Genomic study of plant led to development of better means of disease control and better yield. Improvement can be done in the technique related for forensic science. हमने 9 ब्रांचेस को कनेक्ट किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द crime controversies, criminals, that type of activities which are related to the biological evidence and their justification for the justice, that is known as the criminology or forensic science. We have also added this branch a new data, new information which are related to easy study at the manipulation and exhaustion of our new genes. So dear student, at this content we have learned translation, transcription and human genome project. Translation, transcription and human genome project, 3 questions are so important for annuals. You have also studied transcription and translation in the point of view of their enzymatic control and coordination of their mechanism, their time durations, what is the difference between transcriptions and translation in eukaryote and prokaryotes, and other questions. Thank you. Have a nice day.